IBN نیوز کے ساتھ میں ہوں سید علی حیدر۔ خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹنڈوالہ یار شہر کے میرواہ روڈ کی نصیر کینال کی پل سائڈوں سے ٹوٹ گئی۔ مذکورہ پل کسی بھی وقت بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ میرواہ روڈ کی نصیر کینال کی پل خستہ حالی کا شکار ہے۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ پل موجودہ حکومت کی کارکردگی کا مذاق اڑانے لگی۔ اہل علاقہ کے مطابق پل کسی بھی وقت کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ اہل علاقہ نے ارباب اختیار سے فوری پل کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ مرید کے سے جہاں پر بااثر مافیا تاحال سرکاری زمین پر قابض ہے۔ تحصیل مرید کے میں بااثر قبضہ مافیا تاحال بے لگام، ضلعی انتظامیہ تماشائی بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق شیخ پورہ روڈ سیکھم اڈا پر محکمہ انہار اور نیشنل ہائی وے کی اربوں روپے مالیتی سرکاری زمین تاحال واگزار نہ کروائی جا سکی۔ ذرائع کے مطابق پٹواری سے لے کر DCO آفس شیخ پورہ تک کا عملہ ہر ماہ مبینہ طور پر جیبیں گرم کرنے لگا۔ غیر قانونی قبضہ سے سرکاری محکموں کو 300 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سمندری شہر کے گرد و نواح میں شدید دھند کا راج۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M3 کو سمندری سے لاہور، رجانہ اور فیض پور تک شدید دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قومی شاہراہ پر بھی حد نگاہ متاثر ہو کر رہ گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق سمندری کے مقام پر موٹر وے M3 شدید دھند کے باعث سمندری سے لاہور، رجانہ اور فیض پور تک بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ متاثر ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا مزید کہنا تھا کہ تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ موٹر وے روڈ یوزرز کی سہولت کے لیے بند کی گئی ہے۔ روڈ یوزرز معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ضلعی صدر SF تحریک انصاف حافظ آباد رائے انصر اعجاز کھرل اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت PTI چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ضلعی صدر ISF تحریک انصاف حافظ آباد رائے انصر اعجاز کھرل اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت PTI چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ ضلعی صدر مسلم لیگ نون چودھری محمد بخش تارڑ نے رسول پور تارڑ میں ISF کے ضلعی صدر رائے انصر اعجاز کھرل، رائے شاہ نواز، رائے وکاس عرف بگا سمیت درجنوں ساتھیوں کی استقبالیہ تقریب میں رائے انصر اعجاز نے ساتھیوں سمیت شرکت کی اور PTI چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ رائے انصر اعجاز کے استقبال میں نوجوان لیڈر رائے فخر زمان کھرل، چودھری جہان خان تارڑ، کیسر شہزاد بھٹی نے بھی شرکت کی۔ رائے انصر اعجاز نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم ضلعی صدر چودھری محمد بخش تارڑ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مل کر حافظ آباد میں مسلم لیگ نون کو مزید مستحکم اور فعال بنانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں گے۔ ضلعی صدر چودھری محمد بخش تارڑ نے انصر اعجاز کھرل کی شمولیت پر ان کا خیر مقدم کیا۔ 17 فروری وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے گمشدہ افراد کے لواحقین کی ملاقات۔ وزیر داخلہ سے گمشدہ افراد کو بازیاب کرانے کے حوالے سے بات چیت۔ وزیر داخلہ کا گمشدہ افراد کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ یہ ایک انسانی معاملہ ہے، ہم اس کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے تمام ادارے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ حکومتی کوششوں سے بہت سے گمشدہ افراد کو بازیاب بھی کرایا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج کابینہ اجلاس میں قانون لانے کا کہا ہے۔ وزارت قانون گمشدہ افراد کے حوالے سے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے۔ گمشدہ افراد کی جلد سے جلد بازیابی کے لیے تمام حکومتی وسائل استعمال کریں گے۔ پاکستانی فوج پچھلے 20 سال سے حالت جنگ میں ہونے کی وجہ سے دنیا کی نایاب ترین فوج بن چکی ہے۔ اس کے بپھرے شیر اپنے سپہ سالار کے ایک اشارے کو منتظر رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد فوج ہے جو گوریلا جنگ کی فاتح بنی۔ ہمارے گمنام ہیروز کی قربانیوں کی وجہ سے آج امریکہ اور نیٹو کی خربوں کی ٹیکنالوجی کو گوڑیوں کے بھاؤ بک رہی ہے۔ پاک فوج نے مغربی بارڈر پر زبردست انٹیلیجنس آپریشن سے دشمن کو روٹ آؤٹ کر دیا۔ پاکستانی عوام اور IBN نیوز انتظامیہ کی جانب سے پاک فوج کو سلام۔ سلام پاک فوج، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پبی ثانیہ صافی نے شجرکاری مہم میں حصہ لیتے ہوئے گورنمنٹ ہائی اسکول پبی اور پبی بازار میں اربن پلانٹیشن مہم کے تحت پودا لگایا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پرنسپل عمر فاروق، TMO پبی اخلاق حسین اور طلباء نے بھی حصہ لیا۔ شجرکاری مہم کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا اوزگن کی ہدایت پر ضلع بھر کے اسکولوں، بازاروں، شہروں اور دیہاتوں میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگا رہے ہیں۔ سرویں جماعت کے روحانی
पेशवा मखदूम MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मान और वजीर रेवेन्यू और रिलीफ सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मान की ज़ेर सदारत रेवेन्यू हाउस क्लिफ्टन कराची में मोटियारी के ज़िले अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन का अहम इजलास हुआ। इजलास के मुताबिक इजलास में हाला शहर में CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला, डिप्टी कमिश्नर मोटियारी को फौरी तौर पर PC1 तैयार करके पेश करने की हदायत। इजलास तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा, तमाम अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने, जिला के शहरी और देही इलाकों में अवाम को दरपेश मुश्किलात और मसाइल के फौरी सद्बाब के लिए बिला तफरीक हंगामी इकदाम उठाने के अहकाम जारी करते हुए कहा गया कि अब जो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अंजाम नहीं देंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर रेवेन्यू सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने कहा कि हर महीने मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के मुअज़्ज़िज़ीन और ज़िलाई अफसरान का मुश्तरका इजलास मुनक्कद करके अवामी मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा अवामी बहबूद के काम किए जाएं, पुलिस को अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने, इंटेलिजेंस नेटवर्क को हाई अलर्ट करने और तफ्तीश के अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार करें। गाड़ियों, मोटरसाइकिल, डाका जनी और मवेशियों की चोरियों को रोकने के लिए मौसर इकदाम उठाने के अहकाम जारी किए हैं। इजलास में सेनेटर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काजी शाहद परवेज, डिप्टी कमिश्नर मोटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह, SSP आसिफ अहमद बघियो, असलम पीरजादा, सैयद सैफ अली शाह, मीर मुसरत जाफरी, रईस शौकत, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर डॉक्टर यार मोहम्मद खोसू, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर अरशद भुट्टो, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रियाज गाहोटी, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर फाहद मंसूरी, एडिशनल डायरेक्टर ज़राअत रफीक राहू, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आबद हुसैन रंद, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद साबर XCN, एजुकेशन वर्क्स मोहम्मद अली गाहू, डॉक्टर समी समेत मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। पॉपुलेशन वेलफेयर की जानिब से मोटियारी प्रेस क्लब के सामने अपने जायज मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक पॉपुलेशन वेलफेयर की जानिब से मोटियारी प्रेस क्लब के सामने अपने जायज मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत मोटियारी सोशल मील मोबिलाइजर मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल मजीद शेख, फयाज हाशमानी, आबद अली मेमन, कामल अली मेमन और दीगर रहनुमा कर रहे थे। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुजाहरीन का कहना था कि हमारे पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा मील मोबिलाइजर के मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए, हमारी बकाया तनख्वाह जारी की जाए। उन्होंने कहा कि जो मनसब में मोबिलाइजर मुलाजमीन है उनको रेगुलर किया जाए, पुरानी सीनियरिटी दी जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हमारे जायज मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो हम कराची प्रेस क्लब और वजीर आला सिंध हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना देंगे। उन्होंने वजीर आला सिंध और आला हकाम से अपने जायज मुतालबात तस्लीम करने की अपील की है। इंतजामिया की अदम तवज्जुही की बात दरबार हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कदीमी अलम पाक वाले साइड बाजार में गटर नालों का पानी आने की वजह से ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सेवन शरीफ म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत के बाद दरबार हजरत लाल शहबाज कलंदर के कदीमी अलम पाक के तरफ बाजार से लेकर शहर भर में गटर नालों की सफाई ना होने के बाद शहरी और ज़ायरीन अजियत में मुब्तला। शहर के गलियों, चौक चौराहों से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों ने आला हकाम से नोटिस का मुतालबा किया है। सिब्बी पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। गुज़िश्ता शब शारजा चौक पर हिंदू की दुकान में असलहा के जोर पर लाखों रुपए डाकू आसानी ले उड़े। आज दिन दिहाड़े लेविस चौक पर वाक़या अलकरम PCO सुपर स्टोर से डाकू असलहा के जोर पर लाखों रुपए ले उड़े, मगर पुलिस की जानिब से ताहाल कोई भी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चतराल में भी छजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें 22 लाख पौधे लोगों में मुफ्त तकसीम किए जाएंगे और मुकामी लोग इन पौधों को लगाकर मुल्क में जंगलात की कमी पर काबू पा सकते हैं। जंगलात की कामयाबी की वजह से हम कुदरती आफात से भी बच सकते हैं। मज़ीद तफसील के लिए देखते हैं गुल हमाद फारूकी की ये रिपोर्ट। प्लान फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत चतराल में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में तहसील दरोश के शीशी पुल के करीब दरिया के किनारे एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर दरोश अब्दुल हक मेहमान खसूसी थे। तकरीर से खिताब करते हुए महकमा जंगलात के अफसरान और इलाके के अमायदीन ने जंगलात की अहमियत पर इस्लामी और साइंसी नुक्ता नज़र से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने से मुल्क में जंगलात की कमी पूरा होता है। ये दरख्त न सिर्फ हमें ताज़ा ऑक्सीजन फराहम करता है बल्कि कुदरती आफात में भी कमी का बायस बनता है। ये हमारे चतराल में पहले ज़माने में सैलाब नहीं आते थे, अभी तो जंगल कम हो रहा है
और जंगलात वाले कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी पौधे लगाते हैं वहाँ तो सैलाब के रोकथाम हो जाते हैं। अगर इसको भी अगर ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह चित्राल में सैलाब नहीं। अभी ये देखें, ये पहले ज़मीनी थी, अभी ये तो शौतार बन गया है। तकरीब से कारी जमाल अब्दुल नासर, माहिर तालीम सलीम कामिल, SDFO यूसुफ फरहाद, SDFO अजीज़ वली और दीगर ने भी अज़हार हाल किया। ऐसी दरोश ने बताया कि ये दरख्त हमारी बका के लिए नहायत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ हमारे जंगलात हैं, हमारे रिवर बेड्स में हैं, चाहे वो पहाड़ों में हैं, तो वहाँ पे जब भी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो ये फ्लड्स को रोकते हैं, अपनी जड़ों से ये ज़मीन को कंट्रोल करते हैं। इस वजह से फ्लड सिचुएशन नहीं होता, लोगों को नुकसानात कम होते हैं। SDFO अजीज़ वली का कहना है कि आज की इस तकरीब में वो 20,000 पौधे लोगों में मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। जहाँ अभी रिवर बेड में हमने जो 16,000 17,000 जो पौधे लगाए हैं, ये ऐसा समझें कि ये 100% कामयाब हैं, क्योंकि ये आपके नज़र में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की मुनासिबत से हमने 1100 पिच हमने किए हैं, 1100 पौधे उन्होंने लगा दिया, तो इंशाअल्लाह ताला आज 20,000 पौधे लोगों में हम फ्री तकसीम करेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर इजाज़ अहमद ने बताया कि उनको 22 लाख पौधे लगाने का हदफ दिया गया है। इस प्रोग्राम में जो मानसून और उसका स्प्रिंग का मिलाकर हमारे तकरीबन 2.2 मिलियन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट है, यानी 22 लाख। इनमें से तकरीबन हमने 7 लाख अचीव किया है और अभी आगे जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने आर्मी के साथ, स्कूल्स के साथ और पब्लिक कम्युनिटी जो है जनरल और हमारे कमेटीज़ हैं, उनके साथ हम टाइम टू टाइम प्रोग्राम रख रहे हैं और उनसे प्लांटेशन भी करवा रहे हैं। आखिर में मेहमानों ने दियार के पौधे लगाने के साथ साथ लोगों में 20,000 पौधे भी मुतक़सीम किए। इस तकरीब में महकमा जंगलात के एहलकारों के अलावा सियासी और मजहबी रहनुमा, तलबा, समाजी कारकुनान, असातिज़ा और आम लोगों ने भी कस्ती तादाद में शिरकत की। वाज़ेह है कि दरोश में दरिया के किनारे 16,000 पौधे लगाए गए हैं, जो सैलाब की रोकथाम में नहायत मुआविन साबित होती है और ज़मीन को भी कटाई से बचाती है। चित्राल की खूबसूरत वादी मिडल ईस्ट में बर्फानी खेलों का टूर्नामेंट स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पज़ीर हुआ। बर्फानी खेलों में लड़कों के साथ साथ इलाके की बच्चियों ने भी हिस्सा लेकर अपनी फन का मुजाहरा करके ये साबित किया कि हम भी किसी से कम नहीं और तमाशाइयों से दाद ली। मज़ीद तफसील के लिए देखते हैं गुल हमाद की ये रिपोर्ट। चित्राल के खूबसूरत वादी मिडल ईस्ट में बर्फानी खेलों का टूर्नामेंट इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस टूर्नामेंट का इख्तिताम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर चित्राल फारूक आजम ने किया था। मुकामी तंजीम अज़मी अली शान के अरकान ने इस स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में खसूसी तौर पर इलाके की बच्चियों को भी मौका फराहम किया ताकि वो भी इन खेलों में हिस्सा ले सके और उनकी भी हौसला अफजाई हो। नो डाउट रोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मेन दरोश से निकलते थे यहाँ पहुँचने के लिए, हालांकि बहुत कम डिस्टेंस है लेकिन 3-4 घंटे लग जाते हैं, इनएक्सेसिबल है और इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत बड़ा मसला भी खड़ा हो सकता है। सो जो लोग सुन रहे हैं हु हैव द अथॉरिटी, वो यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे अगर रोड पे काम कर सकते हैं तो यहाँ के बहुत सारे इश्यूज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मेल्स तो हर कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेरी इनसे ये गुजारिश है कि वो फीमेल्स को भी अपॉर्चुनिटी दे कि वो भी आए इस स्पोर्ट्स में, क्योंकि इनके पास स्नो है, स्की है, सब कुछ है, लेकिन इनको फीमेल्स को भी चांस देना चाहिए कि वो भी स्पोर्ट्स में आए और हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इन खेलों में स्नो स्कीइंग, स्नो स्केटिंग, मैराथन रेस, बैडमिंटन वगैरह शामिल थे। बर्फानी खेलों में बाद सयाहों ने भी किस्मत आजमाई की, मगर वो बुरी तरह बर्फ के मैदान में गिरते जाते हैं। सयाहों को महसूस करने के लिए दफ और सतार की खसूसी सकाफती शो का भी इस्तेमाल किया गया था। खेल के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम हुए। इस मौका पर कैफी टूरिज्म की ब्रांड सफ़ीर कबीर अफरीदी मेहमान खसूसी थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर फारूक आजम ने तकरीब की सदारत की। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कबीर अफरीदी ने इन खेलों और खिलाड़ियों को बहुत सराहा। कोई शक नहीं है, मदगलाश इलाके हुस्न का तारीफ़ करे, टैलेंट का तारीफ़ करे, जितना भी करे कम है। अब आप देख सकते हैं मेल है, फीमेल है, छोटे हैं, बड़े हैं, उनमें मुख्तलिफ़ टैलेंट हमने देखे, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हों। आप देख सकते हैं स्कीइंग है, स्नोबोर्डिंग है, तो बहुत से मौके इनको अगर हम दें अपने मुल्की लेवल पर, ये कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर का कहना है कि वो अंडर 21 गेमों में हिस्सा लेने के लिए मिडल ईस्ट से बच्चों का इंतखाब करेंगे। यहाँ बच्चों और बच्चियों को अंडर 21 गेम में शामिल होने की मैं कोशिश पे लगा हूँ कि इन लोगों को भी अगर वहाँ तक मौका मैसर आ जाए। और ये इन खेलों को देखने के लिए आने वाले सयाह भी इसकी तारीफ किए बगैर न रह सके।
واقعی روڈ بہت بدحالی کا شکار ہے, بہت دشوار گزار ہے, اور فاصلہ اتنا نہیں ہے دروش سے مڈکلاش تک, لیکن روڈ بہت خراب ہے. تقریباً 3 گھنٹے ہمارے لگے. تو یہاں جب میں آیا اور یہاں جب میں نے لوگوں کو دیکھا تو یقین مانے میں بہت زیادہ متاثر ہوا. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ خود آپ کو راستے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ کو سلام کرتے ہیں, بے شک کوئی تعلق ہو یا نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو پلیئرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی بڑے اچھے ہیں, کافی اچھے ہیں, لیکن یہاں پہ فیسلٹیز تھوڑا سا کم ہے. پروگرام کے آخر میں سیاحوں کو بھی سنو اسکیئنگ کا پریکٹس کروایا گیا. برفانی کھیلوں کو دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں تماشائی مڈگلش کے اس برفپوش میدان میں موجود تھے. مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں نے بھی مطالبہ کیا کہ اس وادی کی سڑکوں کو بہتر کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو, اور سیاحت کو فروغ دینے سے اس علاقے کا پسماندگی اور غربت کا بھی خاتمہ ہو سکے. تھر پارکر تحصیل مٹھی یونین کونسل جوڑوں میں ظالم شکاریوں نے نایاب نسل کے ہرن کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. شکاریوں کا ہرن کا شکار, گاؤں والوں نے شکاریوں کو دیکھ لیا, شکاری ہرن چھوڑ کر بھاگ گئے. علاقہ مکینوں کے مطابق شکاری بنام زیتون, لطیف اور دیگر شکاری شامل ہیں. تھر پارکر آئے روز فطری حسن کی نسل کشی کی جا رہی ہے. محکمہ جنگلی حیات شکاریوں کے ساتھ گٹھ جوڑ میں ہے. بے رحم شکاریوں کے خلاف کارروائی کر کے تھر پارکر نایاب نسل کو بچایا جا سکتا ہے. کرتے ہیں گجرانوالہ کے علاقہ سلمان پاک کچا فتومنڈ کی, جو کہ اس وقت گندگی کی لپیٹ میں ہونے کے بعد خطرناک بیماریوں کا مرکز بن چکا ہے. اس وقت ہمارے رپورٹر اطہر سلطان مغل وہاں پر موجود ہیں. مزید ان سے بات کرتے ہیں. جی اطہر سلطان, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. سلمان پارک کچا فتومنڈ میں موجود ہوں. کچا فتومنڈ مشر روڈ کا علاقہ ہے اور یہ بہت مصروف ایریا ہے. یہاں پر دن بدن آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے آئے دن مکانات کی تعداد بڑھ رہی ہے, رہائشی بڑھ رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے واسطہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی بد انتظامی, کرپشن اور ہڈ حرامی کی وجہ سے یہ علاقہ مسائلستان بنتا جا رہا ہے. میرا کیمرہ مین آپ کو گریجولی دکھانا چاہے گا اور دکھا بھی رہا ہے کہ یہاں پر ایک تالاب ہے جو پچھلے 8 سال سے یوں ہی ہے. یہاں پر لوگ جو ہے سیوریج کے بند ہونے کی وجہ سے اپنا جتنا بھی گند ہے, فضلہ جات ہے, وہ اس میں ڈالتے ہیں, اور کرونا کی اس پروبا دور میں جو ہے وہ یہ جو تالاب ہے بیماریوں کا فلت ڈبو بن چکا ہے. یہاں پر وکیل بہت پریشان ہے, آئے دن جا کر بادشاہ کے دفتر میں اور اپنے یو سی کے آفسز میں جا کر احتجاج کرتے رہے, لیکن متعلقہ اداروں کے افسران کے کانوں میں جو نہیں رہیں گی, اور اگر افسران کچھ نہیں کریں گے تو لامحالہ ان کے جو اہلکار ہیں وہ بھی کچھ نہیں کریں گے. یہاں کے جو مکین ہیں انہوں نے پرزور مطالبہ بھی کیا ہے اور احتجاجی رنگ بھی دیا ہے ہمارے IBN نیوز کی وساطت سے کہ خدا کے لیے ہم بھی انسان ہیں, ہمارا بھی صحت اور صفائی کا پورا حق ہے. تو ہمیں جو ہے نا متعلقہ اداروں کو یہاں پر گند اٹھانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں جن میں یہاں کے ہماری تعلیم ہے, وحید اختر صاحب, ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور وہ کتنی کوششیں کر چکے ہیں. جی, میں اس علاقے کا سماجی کارکن ہوں اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا جو ہے نا ہمارا کام ہے. لیکن جب سے ہم اس علاقے میں کام کر رہے ہیں, اس علاقے کے اندر جو ہے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلا سلمان پارک ہے, ایک اسلم گتے والا گلا ہے اور ایک ماربل والا گلا ہے, اور ان تینوں گلوں کے اندر انہوں نے حالیہ سیوریج لائنیں بھی ڈالی, لیکن بدقسمتی سے یہ سیوریج لائنیں کچھ عرصہ پہلے ڈالی گئی ہیں لیکن یہ بند ہے اور ان کو چلایا نہیں گیا. ان کو جو ہے نا ان کی صفائی نہیں کی گئی, ان کی دیکھ بھال نہیں کی گئی. اور جب آپ نے ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ سے ملاقات کی, انہوں نے اپنے مثال سے آگاہ کیا تو ان کے اس بارے میں کیا تاثرات تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو آپ کا جو ہے آپ چلے جائے, آپ کا کام ہو جائے گا. ہم نے بارہا جو ہے نا رباب اختیار سے جو ہے نا ہم درخواستیں دے چکے ہیں, ایک بار نہیں. یہ سب سے بڑا جو ہمارے علاقے کا یعنی کہ گجرانوالہ ڈویژن کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ DCO صاحب ہے, جو تمام ادارے اس کے انڈر کام کرتے ہیں. ہم نے ان کو بھی درخواست سبمٹ کیا, یہ ایسی درخواستیں کئی سبمٹ کر چکے ہیں, لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں اسے, لیکن اس کے اوپر جو ہے ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی. یہ تقریباً 20 تاریخ کو, پہلے مہینے کی 20 تاریخ کو یہ درخواست دی گئی ہے اور آج 5-6 تاریخ ہے, اور میرے خیال سے ابھی تک اس درخواست کے اوپر عمل ہو جانا چاہیے تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بارہا ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں,
वासा इंतजामिया अलहदा हमारा मजाक उड़ाती है और ऊपर से ये कहते हैं कि जी आप बिल जमा करवाएं वासा, बल्कि उनका अपना कोई सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। वो अब इंफरादी तौर पे तो कोई बंदा एप्लीकेशन दे। अच्छा, मुंतखब नुमाइंदे हैं जो यहाँ के जो MNA और MP साहब है, उनसे अगर आपने कोई बात की हो तो वो उनका क्या कहना था इस बारे में? जी वो भी हम उनके पास भी कई बार गए हैं, इतला भी दी है, जैसा कि ऐसे मीर साहब है और सदीक मेहर साहब है, लेकिन वही रवायती टाल मटोलियाँ हैं और हमें बड़ा उम्मीद अफजा बात करते हैं जी आप जाएं, अभी वर्कर आ जाते हैं आप जाएं। ये सुनते हुए मैं 7 साल हो गए हैं और ये मेरे ख्याल से ये दिखा सकते हैं पूरा गलत इलाके में कोई बंदा, कोई मरीज, कोई बीमार, कोई एम्बुलेंस, कोई सर्विसेज एमरजेंसी बजरिया हम अपनी आवाज़ मीडिया इन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि अदारों की इतनी बेहिसी है कि ये देख सकते हैं आप कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो है अंदरूनी शहर का एरिया है, कमिश्नर रोड का, और जहाँ पे बहुत बड़ा पुल करीब बनाया गया है अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन अंदरूनी इलाके का हाल देख ले। ये UC10 है, इसमें मेन गले हैं, ये गला सलमान पार्क का, असलम गते वाले का और मार्बल वाला, ये तीनों का यही हाल है। जी, आप यहाँ पर रहते हैं और क्या आप समझते हैं क्या तो ये समझते हैं कि इस इलाके का काम होना चाहिए। इस इलाके में ये गंदगी है और गटर कुछ लगे हैं तो लोग बहुत परेशान हैं। आज के नहीं कि 8-10 साल से ये काम हो रहा है, तो लिहाजा इन लोगों का तो काम होना चाहिए। सीवरेज वगैरह का, जय पानी का सुना, लोगों की आहो बकास सुनी, यहाँ पर हर तबका, खुसूसन यहाँ पर अमीर गरीब और वो तबका जो यहाँ पर जो कारोबार खोल के बैठे हैं वो बेतहाशा परेशान है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं जो ये 8-10 साल से बहुत ज्यादा अरसे से ये यहाँ पर गंदगी बर्दाश्त कर रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। जी बोलो जी। इतना आप तो आया ना सुख पुके ईमानी बात है, इतना पानी यहाँ खड़े हैं, वहाँ इतना पानी थी। अच्छा मियाँ जी, जब यहाँ पर छोटे बाढ़ में से देखते हैं क्या होता है, गंद दूरों तो लिया के लोग गोया की चिकड़ गंदगी इतने फेंक दे ट्रालियां वाले इलाका जी लुखा है ते पानी गलियां च ना कह नमाजी दा हाल ना कोई परौना आवे ना ना थके ना जा। ये जो है बिल्कुल फितरी जो है वो शिकायत है यहाँ के रहने वालों की। कोरोना का ये दौर चल रहा है, आए रोज जो है 50 से 60 अफराद के करीब जो है वो मौत के गोद में सो जाते हैं जाकर। आए रोज लोग कोरोना के वजह से मर रहे हैं। और कोरोना क्या है? कोरोना यही वो गंदगी है, यही वो गोबर है, यही वो तालाब है जिससे कोरोना फैला है। तो हमने हमारी आला हुकाम से ये अपील है, इलाके का मकीनों का कहना है कि हमारी इलाका हुकाम से अपील है कि हमारी आवाज़ को सुना जाए। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी वोट देते हैं और हमारा भी मुंतखब अवामी नुमाइंदों पर उतना ही हक है कि हम अपना जो हकूक वसूल करें। हमें भी सेहत, सफाई और जो है तालीम वो हमें दी जाए। कैमरामैन अली हसन के साथ इंतजामिया मुर्दाबाद, वासा इंतजामिया मुर्दाबाद, वासा इंतजामिया मुर्दाबाद, वासा इंतजामिया मुर्दाबाद, नाम और अरबाब इख्तियार मुर्दाबाद, नाम और अरबाब इख्तियार मुर्दाबाद, वासा इंतजामिया। जी, ये थे इन लोगों के, इस इलाके के लोगों के जज्बात जो कि बिल्कुल फितरी है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला से कि वो एक अपना विजिट यहाँ पर रखें ताकि उनकी आंखें खुले और उन्हें ये पता चले कि आज 21वीं सदी के दौर में जब उनका दफ्तर इस एरिया से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर है, लोग कैसे जी रहे हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ अतर सुल्तान मुगल, IBN न्यूज़, गुजरांवाला। जी नाज़रीन, आपने देखा कि क्या अहवाल है सलमान पार्क के रहायशियों का जो गंदगी के बायस मसाइल का शिकार हैं। कोहाट पुलिस की मोहम्मद जई के इलाका लाल मेला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, घर पर छापा मारकर जेर जमीन छपाए गए असलहे का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कार्रवाई में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए असलहे में 2 क्लाशनकोफ, 2 बंदूक, 1 रिपीटर, 1 राइफल, 3 पिस्तौल और सैकड़ों कारतूस शामिल है। जेर हिरासत मुलजिमान शेर मोहम्मद और हाजी गुल मोहम्मद जई को थाना कैंट मुंतकिल कर दिया गया। कार्रवाई में गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को पूछगिछ के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया। मटियारी के करीब कौमी शाहराह जुनेचा मोरी पर इंतहाई तशवीशनाक हालत में नामालूम नाश बरामद। तफसीलात के मुताबिक मटियारी थाने के हदूद में कौमी शाहराह पर 40 साला नामालूम इंतहाई तशवीशनाक हालत नाश बरामद हुई है, जिसके बाद इलाका मकीनों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने चाहे वकुआ पर पहुंचकर लाश को उठाकर तालुका अस्पताल मटियारी मुंतकिल कर दिया। आखिरी इतला तक नाश की पहचान नहीं हो सकी।
मटियारी के करीब कौमी शाहराह पर रोड हादसे में एक नौजवान जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मटियारी के करीब कौमी शाहराह पर केबरानी थाने के हदूद में नामालूम गाड़ी का मोटरसाइकिल का टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार सादक खोसू का रहायशी 25 साला नौजवान इमदाद खोसू मौके पर फौत और इनके हमराह से खाद का रहायशी मीर चौहान शदीद जख्मी हो गया, जिसको केबरानी थाने की पुलिस ने फौरी तौर पर तलको अस्पताल मटियारी मुंतकिल कर दिया, जबकि शदीद जख्मी मीर चौहान को इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैदराबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला थाना फिरोजवाला के इलाका जंगी में मुमताज सियासी और समाजी शख्सियत राना इफ्तिखार अहमद खान के घर मुबैना तौर पर पुलिस ने धावा बोल दिया। इस वक्त मैं थाना फिरोजवाला के इलाका झंगी में मौजूद हूँ, जहाँ पर इलाके की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत राना इफ्तिखार अली खान के घर पर पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए धावा बोला और वहाँ पर मौजूद कीमती अमलाक को नुकसान पहुँचाया और उनकी सियासी साख को मुतासर करने के लिए उनके घर के बाहर जो लगे हुए सियासी फ्लैक्स हैं उनको भी उतारा गया और उन पर एक झूठी FIR जो कि बिल्कुल बेबुनियाद थी वो दर्ज की गई, जो बिल्कुल कानून के साथ मजाक के बराबर है। इस मामले पर राना हसन इफ्तिखार क्या कहते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन इफ्तिखार है। तो मैं जंगी का रहायशी हूँ। UC 70 से हम PTA के साहब का टिकट होल्डर भी हैं और नेक्स्ट भी उम्मीदवार हैं। तो हमारी ही हुकूमत में हमारे साथ ये जबर और जुल्म हो रहा है। जो यहाँ का CPO है और SHO थाना फिरोजवाला, ये हमारे साथ बहुत सख्त ज्यादती कर रहे हैं। एक जगह प्लाट का हमारा केस चल रहा है अदालत में, वो CPO साहब के गांव के लोग हैं जिनके साथ चल रहा है। तो CPO साहब इस वजह से पर्सनली इंटरफेरेंस करके जो है ना हमारे साथ सख्त ज्यादती कर रहे हैं। तो इन्होंने हमारे ऊपर 5 तारीख को एक चोरी का पर्चा दिया हुआ है। तो मेरा हकामे बाला से ये कहना है कि मेरे घर के सारे CCTV फुटेज जो है ना, वो जो DVR पड़ा हुआ था, सिस्टम पड़ा हुआ था, वो SHO साहब के पास पड़ा हुआ है। उन्होंने मेरे ऊपर FIR बनाई है। 4 तारीख वाले दिन 6 बजे हमने जाके जो तोड़ फोड़ की है, वहाँ से हमने कई चोरी की है। उसके बाद हमने एक चूल्हा चोरी किया है, जो उनके बकौल उन्होंने झूठी FIR बनाई है। मैं हकामे वाला से कहना चाहता हूँ इसकी शफाफ किस्म की तहकीकात करके वो DVR जो है ना SHO साहब से लेकर चेक करें कि 6 बजे जिस टाइम का वो हमारे ऊपर केस बना रहे हैं उस टाइम हम अपने घर में मौजूद थे, क्योंकि वो DVR लेके जाने का उनके मकसद ये था कि अगर वो DVR ना लेके जाते तो मेरे सबूत प्रूफ जो थे मेरे पास होने थे, क्योंकि मैं अपने घर में मौजूद था जब उन्होंने हमारे ऊपर जिस वक़्त का वकूआ बनाया। तो ये बेबुनियाद और सरासर झूठा जो है ना FIR है। तो मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और आप ये देख सकते हैं मेरे घर के सारे तकरीबन 40-50 जो चेयर हैं डेरे के ऊपर पड़ी हुई थी, जिनके ऊपर लोगों के हम काम करते हैं, वो आते हैं बैठने के लिए। इनके साथ चलो हमारे साथ तो कोई मसला होगा, लेकिन ये कुर्सियों के साथ हमारी कीमती चीज़ों के साथ घर में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करके अलमारियों में से पैसे निकाल के ले गए हैं। पता नहीं उनके साथ 50 मुलाजम थे जिनकी CCTV फुटेज मैं आपको अभी भी दूंगा। कुछ मेरे खुफिया कैमरे में जो मैंने कैच किए हैं वो मैं आपको दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह दरिंदगी का जो है ना मुजाहरा करते हुए एक रीजनेबल शख्सियत के ऊपर जो है ना अटैक किया है। जी, आप सुन रहे थे राना हसन इफ्तिखार की बातें, जिनका कहना था कि पुलिस ने बिल्कुल एक छोटा और बेबुनियाद मुकदमा कायम कर और जातियात में मुदाखलत की है। न सिर्फ चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया है, बल्कि हमारी इलाके में मशहूर तरीन सियासी शाख को भी मुतासर किया है। हमारी आला हुकाम से पुरजोर अपील है कि मुतलका पुलिस एहलकारान और SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाए और CPO से इस बात का जवाब तलब किया जाए कि वो किसके इशारे पर हमारे जातियात में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन राना बलाल के साथ अतर सुल्तान, IBN न्यूज, गुजरांवाला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी की क़यादत में वफद की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से लाए अमल पर गुफ्तगू की गई और वज़ीर आला उस्मान बज़दार का सेनेट इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों सैफुल्लाह खान नियाजी, एजाज अहमद चौधरी और दीगर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ओपन बेल्ट की मुखालफत करने वालों के अंदर खौफ है और उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। हारे हुए अनासर को एक बार फिर से मुंह की खाना पड़ेगी।
नौशहरा हल्का पी के 63 में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। नौशहरा के हल्का पी के 63 में टोटल 102 पोलिंग स्टेशन है। मर्दों के 52, खवातीन के 47 और मुश्तरका 3 पोलिंग स्टेशन है। 102 पोलिंग स्टेशन में 39 हसास तरीन और 35 हसास पोलिंग स्टेशन है। हल्के में टोटल वोटर्स की तादाद 1,39,934 है। मर्द वोटर्स की तादाद 79,063 और खवातीन वोटर्स की तादाद 62,872 है। बात करते हैं गुजरांवाला की, जहां पर नौसरबाज ग्रुप ने मुनाफा का लालच देकर सफेद पोश शहरियों को उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम कर दिया। इस सिलसिला में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अतहर सुल्तान मुगल से। जी अतहर सुल्तान, आगाह कीजिएगा कैसे ये सादा लोग लुट गए। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मलक शफीक, जो कि पाकिस्तान आर्मी में मुलाजिम है, और उनके साथ हैं इम्तियाज अहमद, जो कि बैंक के रिटायर्ड मुलाजिम हैं। इनके साथ रिजवान सईद नामी एक नौसरबाज ने पैसे जायदाद के नाम पर फ्रॉड किया और इन दोनों की जो सारी उम्र की जमा पूंजी है वो लूट कर रुपोश हो गया। आइए उनसे पूछते हैं कि तफसीलात क्या है। जी, रिजवान सईद ने जो मुझे दुकानें सैटेलाइट टाउन बकर ए में 19 और 20 नंबर लेके दी थी, और उसके एवज में उसने एक मुझसे प्लाट लिया जो कि जिसकी मालियत 30 लाख रुपए थी, और कैश इसने मुझसे 25 लाख रुपए लिए और मेरे साथ ये प्रॉमिस किया कि मैं आपको 70 लाख रुपए 5 महीने के 22 जुलाई तक पे करूंगा। अगर मैं वो पे ना कर सका तो मैं आपको 19 और 20 नंबर दुकानें जो है ना वो रजिस्ट्री करके देने का पाबंद होगा। जबकि अभी इसके ये तरीकाकार बन चुका है कि ना तो हमारे साथ कोई कॉन्टैक्ट करता है, और पहले जो हमारा डीलर के साथ कॉन्टैक्ट करता था अभी उसके साथ भी नहीं कर रहा। और अच्छा, आपके डीलर जिससे ये सौदा कराया था उसका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? वो क्या वो भी ये चाह रहा है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश जो थी वो मैंने कर ली है, और ये भी मुझे भी कोई पकड़ाई नहीं दे रहा। मेरा भी यही मामला है सर, मुझे भी इसने दुकान लिख के दी है 11 नंबर, तो पैसे इसने ले लिए हैं। तो ये आजकल करता रहा है, पहले तो 2-3 माह, उसके बाद इसने मेरे साथ राब्ता खत्म कर दिया और मुझे कोई पकड़ाई नहीं दे रहा। तो अच्छा, जो मुतबादल जायदाद इससे लेके दी थी आप, जी मुतबादल दुकानें या जगह, तो वो आपकी अदा की गई रकम के बिल्कुल मसावी है या जी, उस पे इसने लिए थे पैसे, वो बकाया पे 5 लाख रुपया इसने लेना था। इसने कहा था कि मैं वो दुकान कंप्लीट करके दूंगा, लेकिन वो दुकान इसने कंप्लीट नहीं की, बल्कि आगे 2-3 आदमियों के आगे इसने वो सेल कर दी दुकान। आपका आला हुकाम आगे गुजरांवाला चीफ मिनिस्टर पंजाब से क्या मुतालबा है? हमारा चीफ मिनिस्टर साहब से भी और चीफ जस्टिस साहब से भी यही मुतालबा है कि ये नसूर को खत्म किया जाए, इसको पकड़ा जाए। हमें इसने बहुत ज्यादा तंग किया है, तो हमारी सारी जिंदगी की पूंजी ये लेके तो बैठ गया है। तो है ये बदमाश किस्म का आदमी है, जिसके साथ कोई शरीफ आदमी बात नहीं कर सकता, तो लिहाजा इसको पकड़ा जाए। जी, तो आप सुन रहे थे इन अफराद की बातें, इन मुतासरीन की बातें कि इनके साथ जो डबल शाह के नामी एक और किरदार ने इनके साथ 2 नंबरी की है, नौसरबाजी की है और इनको जमा पूंजी से महरूम कर दिया। इन दोनों का गुजरांवाला, वज़ीर आला पंजाब और आला तरीन हुकाम से यही मुतालबा है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, उनकी डूबी हुई रकम को बरामद कराया जाए और जो इनका मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैमरामैन राना उस्मान के साथ IBN न्यूज़ गुजरांवाला। पेशावर बुड्ढा पीर ग्रेड स्टॉप के पास CNG पंप में कंप्रेसर रूम में धमाका हो गया। तफसीलात के मुताबिक इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की मेडिकल और फायर टीम मौका पर पहुंच गई। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करते हुए लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फायर फाइटर्स ने मामूली आग पर काबू पा लिया। हाफजाबाद में जनाबिल जबर का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना वने की तारड़ पुलिस ने 13 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। 13 साला फारिया घर के साथ हवेली से पानी भरने गई थी। मुलजिम मुदस्सर 13 साला फारिया को पकड़कर करीबी कमरे में ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम मुदस्सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला के नवाही गाँव गोंदरावाला में जुनूनी शक्की शोहर अब्दुल मनान भट्ट ने 2 बच्चों की मां नाइला बीबी को गोलियां मार दी।
मुलजिम मौका से फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक गोलियों से शदीद जख्मी होने पर नायला बीबी हलाक हो गई। वाकया की इत्तला मिलने पर एसपी सिविल लाइन DSP कैंट के हमरा SHO अरूप जफर इकबाल नफरी मौका पर पहुंच गए। मौका वारदात से शुवाहद इकट्ठे करने के बाद SP सिविल लाइन मोहम्मद अवैस शफीक ने DSP कैंट जेगम सनावड़ाइच और SHO अरूप जफर इकबाल को फौरी हिदायत देकर मुलजिम की गिरफ्तारी का टास्क दिया। SHO अरूप जफर इकबाल ने DSP जेगम सनावड़ाइच की निगरानी में मुलजिम अब्दुल मनान भट्ट जुनूनी कत्ल की वारदात के ठीक 4 घंटे में मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया।